प्रभु की सामर्थ में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आई बिलीव दैट टुडेज वर्ड इज गोइंग टू एनरिच योर लाइफ इन अ वेरी पावरफुल वे। आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं एक स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत सी इसने तकलीफें उठाई और तकलीफ उठाने के बाद भी इसकी बीमारी सही नहीं हो पाई। जितनी बार ये वैद्यों के पास जाती थी उतनी बार बीमारी और बढ़ जाती थी, उतनी बार परेशानी और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती थी। जी हां, शायद आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज इस टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बहुत से लोगों के पास जाके बहुत दुखों को उठा चुके हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो लोगों से ठोकर खाए हुए हैं, जो लोगों के हाथों से बहुत दुख उठा चुके हैं, ये औरत जिसके विषय में आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं, आपको बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार जो नए नियम में मिलता है उसके 5वें अध्याय की 24वीं आयत से मिलेगी। आई वॉन्ट टू जस्ट रीड दिस पैसेज फॉर यू एंड आई बिलीव दैट दिस डे गॉड हैज ऑर्डेन्ड that God may come into your house, into your living rooms and speak to you in a great and a very powerful way. मुझे नहीं मालूम आज कौन इस टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहा है, पर मुझे यह बात जरूर मालूम है कि यह वचन जब खुदावन ने मेरे दिल के अंदर रखा है तो आप में से किसी एक व्यक्ति के लिए है। I believe that you are that person who has been suffering for a long time. Might be for 2 years, might be for 3 years, might be for 4 years, might be for 5 years, might be for 10 long years, might be for 12 years. And you have still not overcome your problem. It can be sickness, it can be finances, it can be relationship issues, whatever it can be. But I want to tell you, if God is on your side, He can just come into your situation and heal it completely, only if you have faith. आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं उस औरत के विषय में who had an issue from 12 years. It is not amazing that Bible speaks about the issues, that Bible addresses the issues. So many times we have the issues, but there is nobody to address the issue. We have an issue in our country, we have an issue in our family, we have an issue in our college, we have an issue in our office, we have an issue in our daily life, but there is nobody to address it. There is nobody to take care of it. But I want to just thank God, we have a God who addresses our issues. And if you are that person that you are sitting down in your house with an issue, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, मसलों को लेके बैठे हुए हैं, तकलीफों को लेके बैठे हुए हैं फैमिलीज में, तो आज जरूर से इस मैसेज को सुनिए क्योंकि ये मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। I believe that after this message, your faith is going to come up and you will know that who God is. And I believe that the God that I serve is not going to depress you, not going to reject you, not going to let you be dejected anymore. You will not feel rejected. You will not feel depressed. But God is going to come into your life and He's going to change it completely. I want to speak to you about a lady. Her condition is not very good and she also had an issue. Just like you had an issue, just like you have an issue in your house, you have an issue in your family. Just like that, she had an issue in her body. And that issue was just not for 1 or 2 months, but it was there for a very long time. Come on, take your Bibles. If you have a Bible, quickly just go. Grab your Bible. Don't switch off your television. Just take a cup of coffee or just take your food plate right there in front of television. Sit there. Watch this program. Listen to it. It is going to enrich your soul. It will just strengthen you, my friend. It is so powerful. I got so encouraged when I was reading about this lady who is there in the Bible, and I was so encouraged to know about the faith that she carries. बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस औरत के विषय में पढ़ा जिसके पास बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी तकलीफें थी, मगर 1 मिनट के अंदर just with one touch everything got all right. And I believe as you're watching this television program, may God touch you at this very moment and all the issues of your life which has been there for a very long time may get resolved completely. May God bless you as you listen to this sermon. I want to just take you to the book of Mark chapter 5 and I want to read for you from verse 25 onwards. मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक from verse 25 to verse 34. It says like this. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. Imagine there is a lady who had an issue of blood. The blood was flowing out of her body. She had an issue that the blood was flowing out of her body for how many years? 12 years. 12 years is not a small time. 12 years is a big time. 12 years is very difficult for a person to be in a problem. I can't imagine कि मेरे पैर में 12 साल तक दर्द होता रहे. I can't imagine
that I have a problem of finances for 12 long years. It is very difficult when you have problem for such a long years, for such long time. It becomes very difficult for you to just go on. I want to say something to you, and I want to bring to your notice some things that this lady did. Now listen to this. It says like this. लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी, यानी कि खर्च करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी. बड़ा मजा लगता है, मजा आता है जब इसको पढ़ता हूं. इट फील्स लाइक बाइबल इस औरत के विषय में बात नहीं कर रही है, मेरे विषय में बात कर रही है, आपके विषय में बात कर रही है. आई वाज शेयरिंग इट इन माय चर्च एंड इट वाज सो अमेजिंग टू जस्ट शेयर इट. कितना अच्छा लगा मुझे अपने लोगों के साथ इस बात को बांटते हुए और सोचते हुए. जरा सोच के देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे पैसा देते हैं कि वो आपको अच्छा कर दे, मगर यहां तो बात बिल्कुल उल्टी है. ये डॉक्टर को पैसा इसलिए दे रही थी ताकि इसकी तबीयत और खराब हो जाए. कई बार हम डॉक्टरों को पैसा देते हैं, बजाय तबीयत अच्छी करने की तबीयत खराब कर देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड डॉक्टर्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. आई एम फॉर द डॉक्टर्स, आई एम फॉर द मेडिकल. आई बाय माई सेल्फ इज अ नर्स. I believe in medical science, but what I am saying is medicines also fail, doctors also fail, the great intelligence also fail. But I want to tell you, when everything fails, God still prevails. Hallelujah. Isn't it so good that our God is not a dead God, our God is living God. When everything's become limited, God is still alive because He is an unlimited God and He can cross any limited boundaries and come into your life, the limited life, and do a limitless work for you. He is a wonderful and a very powerful God. आज मैं आपको बताना मांगता हूं, बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास 12 वर्ष से बहुत सारी प्रॉब्लम है, 10 वर्ष से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और आपको आज तक उनका मसला नहीं मिला है, आज तक आपको उनका हल नहीं मिला अपने मसलों का. You go to a doctor, instead of your body becoming good, body becomes worse. आप अपने कोर्ट केस को लेके किसी वकील के पास गए, आपने वकील को पैसा दिया, बजाय इसके कि वकील आपके केस को अच्छा करता, आपके केस को और खराब कर दिया. लीजिए, पैसा दे रहे हैं इसलिए कि केस अच्छा हो जाए या केस खराब हो जाए. अपनी गाड़ी आप मैकेनिक को देने के लिए गए कि सर्विस कर दे, मैकेनिक के पास गाड़ी छोड़ के आए, बजाय इसके कि गाड़ी अच्छी कर देता. जब गाड़ी चलाने के लिए आप बैठे, पैसा देने के बाद मैकेनिक को पैसा दे दिया, गाड़ी चलाने के लिए बैठे और लो भैया, गाड़ी अच्छी होने के बजाय गाड़ी और खराब चल रही है. समझ में नहीं आता है दुनिया कहां जा रही है. हम पैसा दे रहे हैं कि चीजें अच्छी हो जाए, मेहनत का पैसा दे रहे हैं कि चीजें अच्छी हो जाएं, मगर चीजें अच्छी होने की जगह और खराब होती चली जा रही हैं. और हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, किसके पास जाएं, कौन इसका सोल्यूशन निकाल सकता है, कौन मेरे बेटे की लाइफ को सही कर सकता है, कौन मेरे बिजनेस को सही कर सकता है, कौन मेरी फैमिली को सही कर सकता है. किसके ऊपर विश्वास करें. भैया डॉक्टर भी धोखा दे रहा है, यहां तो भैया ऑटो वाला भी धोखा दे देता है, भैया मकान मालिक भी धोखा दे देता है. जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे वही हमें छोड़ के चले जाते हैं. इट फील्स लाइक आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं. जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वही धोखा देके चला जाता है. ऐसा लगता है सब मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है सब मेरे जीवन के पीछे पड़े हुए हैं. ऐसे में आदमी को बस एक सहारे की आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा मिल जाए भैया जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें. मैं आपको एक अच्छी खबर देना मांगता हूं. इस औरत के पास अच्छी खबर पहुंची, जैसे आज मैं आपके पास अच्छी खबर लेके आया हूं. बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है. आगे जब आप पढ़ेंगे तो इट सेज लाइक दिस. 26वें आयत से फिर से पढ़ूंगा. उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी, यानी कि खर्च करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी. आपकी कंडीशन में बता चुका हूं. पैसा खर्च करने के बाद भी और रोगी हो गए, पैसा खर्च करने के बाद भी घर और बेकार बना दिया, पैसा खर्च करने के बाद भी गाड़ी और खराब हो गई, पैसा खर्च करने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया, पैसा खर्च करने के बाद भी शादी टूट गई, पैसा खर्च करने के बाद भी बच्चे को बचा नहीं सके, पैसा खर्च करने के बाद भी मेडिसिन से कोई फायदा नहीं हुआ. एंड वी आर टायर्ड and we just do not know what to do with our lives. We just do not know what to go, where to go, how to do the things. We are so tired. इस औरत का किस्सा बिल्कुल ऐसा ही है. मगर एक अच्छी बात उसी समय हुई. 27वीं आयत में 27 verse says like this. वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया. वाव, लिखा हुआ है एक स्त्री थी जिसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी. बहुत से लोग यीशु मसीह की चर्चा सुनते तो हैं. Many people are watching this television program and you have heard about Jesus that he does great things. आपने यीशु मसीह के बारे में जाना है कि वो बड़े बड़े काम करता है. चर्चा बहुत लोग सुनते हैं मगर छूने के लिए कोई नहीं आता है.
छूने के लिए कोई नहीं आता है। आपने जान लिया यीशु मसीह आया, आज से 2000 साल पहले आपके लिए आया था, मेरे लिए आया था, अपनी जान दी, सूली पे चढ़ा, उसके बाद मर गया, उसने अपनी जान को वापस अपने आप पास ले लिया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया, आसमान पे गया, आपके लिए रस्तों को बनाया, फिर दोबारा आएगा। हमने चर्चा यीशु मसीह की सुनी है, हम रोज टेलीविजन पे देखते हैं, भैया क्या जबरदस्त चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आंखें खुल जाती हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। वी हैव हर्ड अबाउट जीसस अ लॉट, बट वी हैव पर्सनली नेवर टच्ड जीसस। आज मैं इसी के विषय में बात करना मांगता हूं। डिड यू पर्सनली टच्ड जीसस? डिड यू हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस? डिड यू हैव any relationship with Jesus, or you're just hearing about Jesus? बहुत से क्रिश्चियन लोग आज इस टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे होंगे, न्यू होप टीवी पे देख रहे होंगे, एंड आई बिलीव कि आप बहुत से मैसेजेस को सुनते हैं, आप बहुत सी मीटिंग्स में जाते हैं, आप बहुत सी फेलोशिप्स में जाते हैं, आप बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल गैदरिंग्स का पार्ट होते हैं, आपके घर में रोज कोई ना कोई पास्टर आता रहता है, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट आई वांट टू आस्क यू, डिड यू टच जीसस? डिड यू टच जीसस? क्या आपने अपनी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के दिल को छुआ है? जब आप यीशु मसीह के दिल को छू लेंगे तो मैं आपको बताना मांगता हूं, समथिंग ग्रेट एंड पावरफुल इज गोइंग टू हैपन। 24वीं आयत में लिखा हुआ है, और भीड़ उसके साथ साथ चलती थी। यीशु मसीह को इससे उन लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है जो उसके साथ साथ चलते हैं। साथ साथ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी लोग चलते हैं, मगर सेलिब्रिटी सबको थोड़ी नहीं जानता है। मैं आपको जोक बताना मांगता हूं। एक बार किसी दोस्त ने मेरे को जोक सुनाया, बोला था, क्या तुम इस फला फला एक्टर को जानते हो? नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी एक्टर का नाम ले लीजिए जो आपको पसंद आता है। क्या तुम इस फला फला एक्टर को जानते हो? मेरा दोस्त ने मेरे दोस्त ने बोला, हाँ मैं तो उस फला फला एक्टर को जानता हूं, मगर वो मुझको नहीं जानता है। आज मैं आपसे बिल्कुल यही बात करना मांगता हूं। जी हाँ, आप तो यीशु मसीह को जानते हैं, मगर क्या यीशु मसीह आपको जानता है? मैं आपसे बात करना मांगता हूं और आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह किसको जानता है। आप चर्च जाइए, आप बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना करते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, इट इज गुड फॉर द क्रिश्चियन लाइफ, बट दैट डज नॉट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जीसस। देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीड फॉर यू फ्रॉम वर्स 28। देखिए इस स्त्री के विषय में किस तरीके से आप यीशु मसीह को छू सकते हैं। नाउ यू गोइंग फॉर द मीटिंग्स, गुड, यू गो फॉर द मीटिंग, आप चर्च जाइए, जरूर चर्च जाना बहुत अच्छा है। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करना अच्छा है। बड़ी बड़ी क्रूसेड्स में जाते हैं, गुड, यू गो टू द क्रूसेड्स, गुड, गो टू द क्रूसेड्स, नथिंग इज बैड। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डू यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस? डू यू डू समथिंग दैट टच द हार्ट ऑफ जीसस? देखिए यीशु मसीह सबकी तरफ मुड़ के थोड़ी ना देख रहा था, बहुत से लोग उसके चारों तरफ थे, मगर इस स्त्री ने यीशु मसीह को पीछे से आके छुआ। नाउ यू सी व्हाट दिस लेडी वाज सेइंग, नॉट ओनली शी केम टू टच जीसस, बट शी वाज आल्सो सेइंग समथिंग अबाउट जीसस। नहीं ये औरत सिर्फ यीशु मसीह को छूने के लिए आई, मगर ये यीशु मसीह को जब छूने जा रही थी उसके पहले ये कुछ बात भी कह रही थी। और आज मैं आपको अटेंशन उस बात की तरफ लेके जाना मांगता हूं। इट सेज लाइक दिस, लिखा हुआ है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। नाउ सी दिस इज कॉल्ड फेथ। ना ही सिर्फ वो ये कह रही थी कि ना ही सिर्फ वो यीशु मसीह के कपड़े को छूना मांग रही थी, मगर साथ साथ में ये कह रही थी अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम लोग कई बार जाते हैं बहुत सारी मीटिंग्स में, मगर कभी ये वाली बात नहीं बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं। ये औरत कह रही थी भैया मैं अब यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम लोग बड़ी मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग से पहले ही बोल रहे होते हैं, पता नहीं भैया जा रहे हैं मीटिंग में, देखिए एक और मीटिंग है, इतने सालों से तो मीटिंग में जा रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब ये भी आए हैं भैया, कोई बहुत बड़े पादरी हैं, सुना है इनका नाम टेलीविजन पे इनका प्रोग्राम आता है, देखेंगे। अब इनकी मीटिंग में जा रहे हैं, सुना तो है बड़ा बड़ा, जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, आपका जाना बेकार है। ऐसे जाने से अच्छा आप मत जाइए। समटाइम्स वी सिट डाउन टू प्रे, पादरी के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। पता नहीं इतने सालों से तो दुआ कर रहे हैं, आज तक तो दुआ का कोई जवाब नहीं मिला, आप दुआ कर दीजिए शायद कोई फायदा हो जाए। मैं आपको बताना मांगता हूं ऐसी दुआ का कोई फायदा नहीं होता है। ये स्त्री के विषय में लिखा हुआ है, ये स्त्री हम लोग जैसी नहीं थी, इस स्त्री का विश्वास हम लोग जैसा नहीं था। इस स्त्री का विश्वास बिल्कुल अलग था, इस स्त्री की अप्रोच बिल्कुल अलग थी, इस स्त्री का स्वभाव बिल्कुल अलग था। पता ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आई नो दैट दिस जीसस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई नो दैट दिस जीसस इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, आई नो दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड, आई नो आई डोंट नीड टू टच जीसस, आई डोंट नीड टू इवन गो इन फ्रंट ऑफ जीसस, ऑल आई नीड टू डू इज इफ आई कैन ओनली टच द गारमेंट्स ऑफ हिज क्लोथ, इफ आई कैन टच द कॉर्नर ऑफ हिज क्लोथ, आई विल बी हील्ड। वाओ व्हाट अ फेथ। कहने लगी
लगे कि बस उसके कपड़ों को छू लूं, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना मांगता हूं कि क्या आपका भी विश्वास ऐसा ही है? आप प्रार्थना करने के लिए बैठते तो हैं, मगर आपकी प्रार्थना में कोई विश्वास ही नहीं है। दुआ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं भैया पता नहीं हो जाएगा तो ठीक है। कई बार हमें लोग दुआ करने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे लिए दुआ कर दीजिए। जब हम दुआ करके जैसे ही अपना हाथ हटाते तुरंत बोलते हैं भाई साहब दुआ करते रहिएगा। उनको इस बात का भी विश्वास नहीं है कि दुआ करिए तो तुरंत सही हो जाएगा। Many times we don't have faith at all in Jesus, but I want to tell you, God is not interested in all those people who don't carry faith at all, but God is interested in people who carry faith all the time with them. इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में एक बार सुना और तुरंत विश्वास कर लिया। बड़ी हंसी आती है कई बार एज अ पास्टर, इट इज सो फनी एट टाइम्स टू सी कि आपके चर्च में एक विश्वासी है जो बचपन से क्रिश्चियन था, एक मसीही है बचपन से क्रिश्चियन है मगर अभी भी फेथ में बिल्कुल जीरो है। उसी जगह एक विश्वासी अन्य जाति से चर्च के अंदर आता है और उसके ऊपर उसके पास इतना विश्वास होता है, ये छोटा सा बिजनेस लेके आता है, इसका बिजनेस यहां से यहां पहुंच जाता है। दूसरा विश्वासी चर्च के अंदर है, सालों से चर्च के अंदर है मगर उसी नौकरी के अंदर अभी भी अपनी चप्पलें रगड़ रहा है, अभी भी उसके जीवन में कुछ नहीं है। नया विश्वासी आता है, एकदम से उसकी फैमिली बन जाती है, उसका घर बन जाता है, खुदा ऊंचे पे उठा देता है। दूसरा विश्वासी चर्च में सालों से है मगर बढ़ नहीं पाता है। एंड इट वाज अ बिग मिस्ट्री फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वाज थिंकिंग गॉड व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। कौन सी चीज का ऐसा होता है, अरे ये तो बचपन से यीशु मसीह आपको जानता है, ये तो पैदा ही मसीह घराने में हुआ, ये बच्चा देखिए दूसरी फैमिली से आया है, दूसरे धर्म से आया है, इसने आपको ग्रहण कर लिया है और अभी आया था और अभी इतना ऊपर बढ़ गया, अभी तुरंत आपने इसकी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। अरे हम तो इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, हम तो इतनी सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आज तक आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, इसकी प्रार्थना का जवाब क्यों मिल गया, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है? हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो मीटिंग में जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं कई बार आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अभी भी आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं है। आप मीटिंग में जाते तो हैं मगर इससे पहले मीटिंग में जाएं उससे पहले ये वाली बात बोलते हैं, पता नहीं, मालूम नहीं, होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो ठीक है, देखेंगे, लेट्स सी, आई डोंट नो, माइट बी, लेट्स होप फॉर गुड, लेट्स ट्राई फॉर द बेस्ट। आई वांट टू टेल यू, जस्ट टेक आउट ऑल दैट स्टफ फ्रॉम योर लाइफ बट कम टू द क्रक्स ऑफ द मैटर एंड जस्ट स्टार्ट सेइंग टू जीसस द लॉर्ड द सेवियर ऑफ आवर सोल, आई बिलीव इट दैट माय गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली एंड abundantly above all what I can think and imagine। आप अपने प्रभु से इस बात को कहना चालू कर दीजिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब आप प्रार्थनाओं के लिए करने के लिए बैठे तो आप ऐसी प्रार्थना करने के लिए ना बैठे कि बोल रहे हो कि देखेंगे, सोचेंगे, बट आपकी प्रार्थनाएं एलिया की प्रार्थना की तरह होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करी और 3 साल तक मैं ना बरसा। उसने फिर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और मैं बरस गया। मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह ऐसे लोगों को देख रहा है, यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपना अटेंशन देना मांगता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। बाइबल बताती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज नॉट हाउ मच बाइबल हैव यू रीड। आई वांट टू टेल यू, बहुत से धर्म के लोग आज बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बाइबल के ऊपर कटाक्ष दे सकें, ताकि बाइबल के अगेंस्ट में बात कर सके। दे आर आल्सो रीडिंग बाइबल, यू आर आल्सो रीडिंग बाइबल। इफ यू आर जस्ट रीडिंग बाइबल without having faith upon Jesus, your reading of Bible is of no use। आज बहुत से लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं है तो आप भी उन्हीं के जैसे हैं। But God is searching somebody who has faith in Him. God is searching somebody who have trust in Him, 100% faith in Him, 100% trust in Him, and that's what God wants from your life. Are you going to have trust in God? Are you going to have faith in God? Are you going to say right now, I believe it for my job that God is going to give me a wonderful job? Do you believe it that Lord, this man is preaching from the television and I believe it that this man as he is preaching from the television something great is going to happen into my life? I want to tell you that God is searching for somebody who may have utter complete faith in Him। खुदा बाप ये चाहता है कि सिर्फ आप उसके ऊपर विश्वास करें, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करें। मैं आपको बताना मांगता हूं आप ही की तरह एक बार मैं टेलीविजन स्क्रीन के उस तरफ बैठा हुआ था जहां पर आप बैठे हुए हैं और मैं पैरों में अपने दर्द से परेशान हो गया था। मेरा नाखून निकल आया था और नाखून निकलने के कारण मेरा अंगूठा सूज गया था और नाखून में बहुत दर्द हो रहा था, अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था और मैं रो रहा था और
रोते रोते कह रहा था, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से मैंने टेलीविजन ऑन किया। जब मैंने टेलीविजन ऑन किया तो राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक व्यक्ति, जैसे मैं इस समय टेलीविजन के पीछे से बोल रहा हूं, टेलीविजन के पीछे से बोलने लगा और कहने लगा, एक जवान लड़का इस समय टेलीविजन के पीछे बैठा हुआ है और मेरी आवाज को सुन रहा है और वो ये इस समय पैर के दर्द से परेशान है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से इसी समय उसका पैर का दर्द सही हो जाए। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैंने ये आवाज सुनी और इमीडिएटली मैंने उसके ऊपर भरोसा किया और मैं, पापा मम्मी दोनों बैठे हुए थे और मैंने अपने पैर को पकड़ लिया एंड आई स्टार्टेड सेइंग, यस लॉर्ड इट इज मी, यस लॉर्ड इट इज मी, It is me, I am in that pain. और तुरंत खुदा बाप ने मुझे उससे रिहाई दे दी और मैं समझ गया। And I came to know, I came to an understanding, if you have trust in Lord, ये टेलीविजन वो माध्यम बन सकता है जिससे आपके घर के अंदर चंगाई आ सकती है। बाइबल बताती है ये औरत कहती थी कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। उसी जगह पे आप देखिए बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं। बहुत से लोग चर्च जाते हैं, गिरे जा रहे हैं चर्च जाने के लिए, बाइबल स्टडीज में जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बट नथिंग इज हैपनिंग। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, this lady just came to Jesus. This lady just came to Jesus and she just gave her life into the hands of Jesus. And as she gave her life into the hands of Jesus and she said, I will touch the clothes and I will be healed. Immediately she was healed in her body and the issue was gone. I'm going to ask you, are you that person with the issue in your family? You are that person with the issue in your job. If you trust, I believe this television is going to become that point of contact where I'm going to pray for you and you are going to see the intervention of God. If you are that person, आज मैं विश्वास करता हूं जिस तरीके से उस स्त्री ने विश्वास किया कि यीशु मसीह इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है कि उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर आज आपके पास यह विश्वास है कि मैं इस टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और जैसे ही हाथ को बढ़ाऊंगा वैसे ही खुदा मुझे चंगा कर देगा, I believe it that then God is going to do it for you right now. इसी समय खुदावन आपके लिए करेगा। आइए इस टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपने हाथ को बढ़ा लीजिए। मैं टेलीविजन स्क्रीन के पीछे से आपके लिए हाथ बढ़ा रहा हूं, आप अपना हाथ सामने से बढ़ाइए एंड ट्रस्ट गॉड दैट गॉड इज गोइंग टू डू अ ग्रेट मिरेकल फॉर यू। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आज तक आप कंप्लेन कर रहे हैं, आज तक आप गिड़गिड़ाते रहे, बड़बड़ाते रहे, बट टुडे आर यू डिसाइडिंग टू गिव योर लाइफ टू जीसस? आई बिलीव इट, एज यू डिसाइड गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा बाप इन व्यक्तियों के लिए जो इस समय टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं। देयर इज अ लेडी राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम। यू आर वाचिंग दिस टेलीविजन प्रोग्राम। एक स्त्री इस समय टेलीविजन प्रोग्राम को देख रही है और आपके पेट में ठीक इस जगह नाभि के जरा से ऊपर बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है एंड आई एम बिलीविंग दैट यीशु मसीह इस समय आपको सही करेगा। काफी दिनों से आपको यहां पर दर्द होता है और डकारें आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, बार बार यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम। डाइजीन बहुत पीती हैं आप, आपने दवाइयां खाई है, कोई प्रॉब्लम से आपका छुटकारा नहीं हुआ। दैट्स अ डीमन स्पिरिट। I'm going to pray right now. यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय हुक्म देता हूं खुदा बाप, ये पेट की तकलीफ से ये औरत बिल्कुल आजाद हो जाए। In the name of Jesus, I command the demon spirit to come out and leave that body. Get healed in the name of Jesus. There's a man right now sitting in front of television program. इस समय आप टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपके सर में बहुत दर्द हो रहा था। आप इस टेलीविजन को प्रोग्राम को देखते ही देखते आपका सर का दर्द खत्म हो गया और आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि सर के दर्द के साथ मैं प्रोग्राम देख रहा था, मेरा सर का दर्द खत्म हो गया। कॉल करिए, तुरंत बताइए कि आपके सर का दर्द खत्म हो गया। There's another person. There's a young boy approximately 8 to 10 years. आपकी लेफ्ट आंख में बहुत तकलीफ थी, काफी टाइम से आपको दिखाई नहीं दे रहा था सही तरीके से। I'm going to pray for you right now. God is going to heal you. Just stretch your hands. अपने हाथ को बढ़ा ले, स्क्रीन के सामने मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं इस जवान बच्चे के लिए जिसकी आंख में तकलीफ है। Right now get healed in the name of Jesus. I speak light. Speak light. There is one man who is sitting right now in front of television screen. आपके गले में तकलीफ है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज चली गई है। You had an operation और ऑपरेशन के बाद से आपकी आवाज चली गई है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। I believe that God will restore you. यीशु मसीह के नाम से I pray God restore them. जितने लोग देख रहे हैं खुदा बाप इस प्रोग्राम को, I pray let your power go out through the television screen and change their life and transform them completely. I speak shalom and power of God in their life. यीशु मसीह के नाम से Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe that God has spoken to you in a very mighty and a very powerful way. I believe many of you are getting healed right now. जैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी चंगे हो गए हैं और बहुत से लोग इस समय चंगे हो रहे हैं। आपको मैं बताना मांगता हूं, बहुत से लोग जिन्हें ये प्रोग्राम देखा है शायद अभी आप हील नहीं हुए हैं, but I want to tell you before this program ends or in this week you will be completely healed. जरूर से हमें कॉल करके बताइए कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको छुआ है। If you have watched this program and you are like this program, I want to remind you, हर फ्राइडे को 8:30 बजे ये प्रोग्राम इसी टाइम पे इसी दिन पे आता है। जरूर से इस प्रोग्राम को देखते रहिए। And I am going to pray for you
We are praying for you. We are praying for your family. I want to bring an important announcement. एक important announcement आपको करना मांगता हूं, बताना मांगता हूं. हम लोग हर संडे को सुबह 10 बजे इबादत करते हैं. स्क्रीन पे एड्रेस है, स्क्रीन पे आप एड्रेस देख सकते हैं, ले सकते हैं, और हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं. We want to invite you. Why don't you just come and join with us? जरूर से आइए, हमारे साथ आइए, इबादत करिए, आपको बहुत मजा आएगा. हम दोनों मिलकर परमेश्वर की इबादत करेंगे. आपका परिवार, हमारा परिवार मिलकर परमेश्वर की इबादत करेगा. बड़े बड़े काम होंगे. आई बिलीव इट कि परमेश्वर ने हमको बैंगलोर में इसलिए भेजा है कि हम कलीसियाओं की स्थापना करें और आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूती हासिल करें और भी बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके. डू नॉट मिस. कम ऑन संडे. अगर आप ये किसी और शहर में प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है, बैंगलोर में है, इबादत करना मांगता है, दे वांट टू कम एंड वर्शिप द लिविंग गॉड, टेल देम द एड्रेस इज ऑन द स्क्रीन. बताइए जरूर से, इस जगह पे जाइए, आपके लिए प्रार्थना होगी, इस जगह फेलोशिप करिए. यू विल इंक्रीज. गॉड विल ब्लेस यू. इफ यू आर अ लेडी or if you are a man and you have a lady, I want to tell you there's a special meeting that is coming up on 24th of August. अभी आप इसका advertisement देखेंगे. You're just going to see that advertisement, watch that advertisement and come down. Sister Rushita Benjamin, I'm a proud husband of a wonderful wife, and I believe that as Sister Rushita Benjamin is going to speak to you through the word of God, it is going to transform your life. She has been a blessing to hundreds of ladies, and I believe as she's going to speak to you, आपकी life transform हो जाएगी. अगर your husband is in the problem, your family is in the problem, you have a child issue, you have the family issues, this meeting is for you. मैं चाहता हूं आप इस मीटिंग को बिल्कुल 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 मिस ना करें, और जरूर से हमारे साथ ज्वाइन करें 24 अगस्त को शाम को 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक. May God bless you. We are so blessed to speak to you. Thank you for helping us to be on television. आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियली हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपके घर में आशीष बनी रहे. अगर आप वो व्यक्ति जो आप हमारे साथ खड़े होना मांगते हैं मिनिस्ट्री में, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना मांगते हैं, नंबर से स्क्रीन पे हैं, जरूर से कॉल करिए. हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं. प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीष दे. जस्ट वेट, वॉच दिस वीडियो एंड देन शट इट डाउन. गॉड ब्लेस यू. The moment I came to the meeting, to this meeting, Women's Awakening meeting, it was powerful. It was full of Holy Spirit. Blessed anointing for each one of us and touching message from Sister Rushita. It was a power-packed worship, power-packed word. This meeting was really a blessing. I learned many things from this. I was blessed, revived. I can feel the anointing in my heart when Sister Rushita was preaching the message. The message was for me. I know each one of us stay in a town. God has put us in this town with a purpose, with a plan. That's what we carried from this meeting. Excellent meeting, full of beautiful sermon, songs, skit. पर मैं आज जानने पाई हूँ कि हाँ, भले ही मेरा परमेश्वर उस जगह में ना हो जहाँ पे मुझे जरूरत है, पर फिर भी वह आएगा और मेरी सारी परेशानियों को हल निकालेगा. When I came, I was so disappointed, I was so discouraged, but I can tell you, now I'm feeling so relaxed, now I'm feeling so light, because my God has taken all my burdens and He has freed. My burdens are just gone. I don't know where. I'm happy to be in God's house. And I bless our town, I bless the city of Bangalore, and I know through this meeting, all the ladies present in the meeting will carry the power and the blessings of Jesus. Please come out of the land of Bethany. Don't be under uncertainty. I'm going to be here on 24th of August. I want to see you all. मैं आशा रखती हूँ 24 अगस्त की जो वुमेन्स अवेकनिंग होगी उसमें मैं यहाँ होंगी और मैं और परमेश्वर की आशीष को पा कर जाने पाऊंगी. As next Women's Awakening meeting is in 24th August, so I will be there to receive more power from God, and I will definitely be a part of it. आप भी आइए, आप भी परमेश्वर के आशीषों को पाकर यहाँ से जाइए.